the twin deficits. The terminology that we use for them is twin deficits, followed with higher inflation rate. फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, इन दोनों को आप ट्विन डेफिसिट कह रहे हैं? No, mainly fiscal deficit followed with current account deficit. Yes. Right. The twin deficit that we talk about. Okay. Now, higher debt followed with dwindling stock market. So the returns are not stagnant, investors are not confident. Then it is followed with lower tax to GDP ratio. It has decreased, unfortunately, followed with high inflation rates. Now let's have a look at how the negative GDP is impacting. Okay, so the GDP shrank to negative 0.4% as against 3.3% in FY19. And if you go back to FY18, the GDP growth was 5.8%. So this is a whole new level of low. Now it is the first time since 1952 in more than 60-70 years that the GDP has growth fallen to negative. Why? Because of this major chunk. Services sector contribution to GDP is 61%, but its actual growth is minus 0.6%. It was always in the positives, and the target was estimated around 4.6%. Again, when we talk about agriculture sector, agriculture is the only sector in which the actual growth was positive, having a growth of 2.7%. Its contribution is only 19% to GDP. Industry, again, it is again going towards negative minus 2.7%, and the GDP contribution is only 20%. So a lot to talk about. Why, if we delve further, we will come to know that why the services sector was affected. It was affected due to the lockdown situation, due to coronavirus, due to quarantine. And if we look at wholesale and retail trade, it fall to minus 3.4%. But the major hit that caused the negativity in the service sector was the transport sector. In transport sector, the rate of growth is minus 7.1%. Although government announced 1.2 trillion for fiscal stimulus package, and this is a positive we will be talking about in the solutions as well. Agriculture sector, strong growth 2.7%, which is greater than 0.6% than previous year. Why? Due to the increase or to the growth in the major cash crops. Now, when we talk about industry, large scale manufacturing, it is one of the most debated things that why large scale manufacturing is negative minus 7.8% because of high tariffs, because it is not facilitating the investors. When we talk about mining and quarrying, it is minus 8.8%. Okay. The second is fiscal budget distribution. If we look at it, we are spending a major chunk into interest payments followed with defense payments. And similarly, we are getting a major revenue from tax receipts and from capital receipts. Very less is being generated from capital receipts. That is a sign of concern. Now 12.6% is borrowing and only 9% is PSDB. That is the thing that we look for. Now the fiscal deficit. भाई एक मिनट पीछे कीजिएगा सर, लास्ट साइड पे कीजिएगा. हाँ, इसमें ये जो कैपिटल रिसीट्स हैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज है? कैपिटल रिसीट्स वो है कि जो आपने क्या कहते हैं उससे कमाया, क्या कहते हैं वो जो फीस वगैरह नहीं होती यूनिवर्सिटीज वगैरह की. किसकी फीस में भाई? यूनिवर्सिटीज वगैरह की. और जो चीजें आपने बेची हैं जो प्राइवेटाइजेशन पे भी आ जाता है इसमें. अच्छा, मतलब आपको कैश जो रिसीव हुआ है बेसिकली, मतलब आपके इनकमिंग पैसों में से जो आपको एज अ कैश एज एन एसेट, हाँ, मतलब वो आपकी कैपिटल रिसीट्स पे आएगा. एंड एक्सटर्नल रिसीट्स क्या है? एक्सटर्नल रिसीट्स जो बाहर से मेरे ख्याल से आपको जो इमदाद मिली है वो है. अच्छा, वो तो बैंक बोरिंग में नहीं आ गया वैसे. नहीं, बैंक बोरिंग तो आप वो खुद ही बोरो करते हो ना, एक्सटर्नल नहीं होता. लोकल बोरिंग फ्रॉम स्टेट बैंक, वो जो PIB वगैरह आप करते हो तो ये तो बैंक जो खरीद लेते हैं टी बिल्स वगैरह, तो ये बैंक बोरिंग. अच्छा अच्छा. और ये जो प्रोविजनल सरप्लस है ये क्या चीज है? क्या चीज? प्रोविंशियल सरप्लस. ये प्रोविंसेस को जो कहाँ पे, ये प्रोविंसेस ने जो एक्स्ट्रा कमाया है इस दफा अपने टैक्स को, जो अच्छा, टैक्स वो जो उनको एक्स्ट्रा कमाया है वो ये 3%. अच्छा, ये सरप्लस. प्रोविंशियल सरप्लस है. हाँ हाँ. अच्छा, ये प्रोविंशियल सरप्लस है. हाँ हाँ.
ठीक है, गुड. Good. Now, when we talk about fiscal deficit, although the position has improved, right, significantly, it is now only 7.5% of GDP against 9.1% जबरदस्त है, नाइस स्लाइड. previous year. हाँ यार ये कोशिश की है. Now why the improvement is there, because the tax revenue basically grew by 10.8% and the non-tax revenue grew in terms of telecom licenses, renewal fees, and the total revenues grew by 31%. Now, why there is growth? The growth is followed by a revision in FED, that is federal excise duty, tax rates on salary slabs, and end of preferential treatment that used to happen previously. Now, looking at high debt to GDP ratio. नूर भाई बैक कीजिएगा एक मिनट. हाँ बोलो. Tax revenue grew by 10.8%. Non-tax revenue grew in terms of telecom license renewal fees. Total revenue grew by 31% during 3 quarters of 2020. ये 9 months of 20 है या क्या है? During 9M20. क्या 9 months 20 का मतलब ये शुरू के जो 9 महीनों का डेटा, जब ये बजट बनता है तो वो मार्च तक का डेटा होता है ना, क्योंकि ये जून के अंदर डेटा आ जाता है, तो जब तक जो फिगर्स आएगी ये 9 मंथ्स का कंपैरिजन है शुरू के. अच्छा, ये फिस्कल ईयर के हिसाब से यानी करंट ईयर के हिसाब से सही नहीं. ओके ओके, गॉट इट. Okay, now we will talking about high debt to GDP ratio. Fitch, one of the top companies, one of the top credit rating companies, has forecasted that Pakistan's debt to GDP ratio will rise up to 90%, and it has put Pakistan in the B minus category. So there are a lot of chances that it will fall down, and this is a trap that is happening due to what? Due to coronavirus and further depreciation of PKR. Okay. Now, when we talk about current account deficit, the total imports have declined by 16%, which is the lowest in last 4 years, as shown as well that it is a sign of improvement. Exports have decreased as well, but it was understandable due to coronavirus. Now, let's have a look at Pakistan's current account deficit shrank by 73% in the first 7 months. Why? Because of major improvements that they have done because of the remittances. Basically, the remittances have continuously grown on, and in July 2020 the remittances amounted to $2.768 billion, and previously, if you look at the previous year's data, it is continuously increasing per year. Okay, now we are talking about high inflation rate. Unfortunately, the CPI has risen to 10.74% in the last year, which is the highest since in the last 10 years or so. So CPI of this month has increased to 9.3% in July from a base of 8.6% in June 2020. Now in CPI there are two categories. One is the urban CPI, the other is the rural CPI as well. So the urban CPI is lower while the rural CPI is more than 11%. Now dwindling stock market. The stock market has been oscillating for quite some time due to corona. एक मिनट हाँ नूर भाई, लास्ट स्लाइड पे कीजिएगा. आप क्या कह रहे हैं कि रूरल सीपीआई जो है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा थी? हाँ, रूरल सीपीआई जो अभी जो डेटा है, मतलब रूरल सीपीआई रूरल जो सीपीआई है वो, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस? कोई खास वजह है इसकी? इसकी खास वजह तो ये है कि वो रूरल के अंदर क्योंकि ज्यादातर नेसेसिटीज के ऊपर बात होती है ना, उधर डिमांड ही वो होती है जो नेसेसिटीज. नहीं, लेकिन मैंने जो चीज अगर देखा जाए तो जो गंदम वगैरह के सपोर्ट प्राइस है, राइस वगैरह की जो चीजें हैं, ये तो इस गवर्नमेंट में बढ़ी हैं. मतलब शुगर की सपोर्ट प्राइस भी बढ़ी थी, कॉटन सपोर्ट प्राइसेस, सब सपोर्ट प्राइसेस बढ़ी हैं. तो उसकी वजह से तो नहीं है कि उसकी वजह से कहीं इन्फ्लेशन ज्यादा हाई लग रही है? यार ये भी है वो, क्योंकि अगर बेसिकली रूरल साइड पे सर्वे दिखाओ ना, ये पीबीएस की रिपोर्ट है. कंजम्पशन कम होती है वहां पे. नहीं वहां पे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सही. वहां पे खाने की कंजम्पशन तो ज्यादा ही है. नहीं, स्टिल
वो वहीं पे रहा है। वहां पे अगर जाहिर सी बात है कि खाने के रेट बढ़ेंगे तो वो इवेंचुअली इट शुड इम्पैक्ट द इन्फ्लेशन ऑफ लाइक क्या कहते हैं अर्बन एरियाज की, यार और उससे बेसिकली मतलब इन्फ्लेशन उनके लिए भी बढ़ेगी बट उनके रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। ये बात तो है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये जो इन्फ्लेशन है, क्या कहते हैं, इसके अंदर जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि आप एक चीज ये देखो कि रूरल सीपीआई के अंदर इसलिए ज्यादा है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्राइसेस बढ़ी है ना, वो बनी है नेसेसिटीज की बढ़ी है। जैसे टोमेटोज का बताया था 190% उसकी प्राइस हाइक हो गई, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है ना, वो नेसेसिटी जो सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है वो रूरल साइड पे ज्यादा होती है। इस वजह से जो रूरल सीपीआई है वो ज्यादा बढ़ा है बानिस्बत उसके अर्बन सीपीआई। ठीक है। Okay, now we are talking about building stock market. So stock market has been continuing on the bound. Whenever a lockdown was announced, the stock market plummeted and it has fallen from like 43,000 to 28,000 points in last 1.5 years. Pakistan stock market hit recent low at the end of March 2020, and if you look at the data, it nearly touched the benchmark, the lower benchmark of 27,000 points, and the average trading volumes fell to 7.2 billion per day. So this is a really low point. Okay, now we are talking about the solutions and the recommendations. I have mixed them up, that what are the different solutions and what are the different recommendations. So the first is broadening the tax base and introducing zero filing system. We will be coming to know that what it is. Change in national and international investor mindset. This is the most important thing, followed with provision of proper infrastructure and export diversification mechanism, followed with effective use of monetary policy. Now, first of all, change in national and international investor mindset. So first of all, we are talking about the international mindset. IMF has approved a loan of USD 1.4 billion in rapid financing instrument. So it means that Pakistan is on the right track. Secondly, Fitch has affirmed Pakistan's long-term foreign currency rating to B minus with a stable look. So it means that we are internationally we are on the right path. Now, the third thing that we have to look internationally is the FATF or FATF that we call Financial Action Task Force. Now, Pakistan has banned major Taliban leaders in order to avoid getting blacklisted on FATF. So, what they have done, that they have done it just before the FATF review. And if you look at the data that has been provided on the FATF website, you will come to know that compliant Pakistan is totally compliant in only one category, largely compliant in 9 categories, partially compliant in 26 categories, and non-compliant in 4. And out of those 4, Pakistan is blacklisted. So Pakistan is going for a positive review from the FATF as well. This was about the international setup. Now we are talking about international and national investment setup. FDI, that is a foreign direct investment, in July 2020, it has increased to USD 114.3 million, up by 61% on year basis. So this is a huge improvement. Then gross foreign exchange reserves have increased to 12.5 USD billion from the previous year estimate of 7.7 billion. So it is nearly an increase of 60-70%. Then the stock market has crossed the 40,000 psychological barrier, and the daily trading has increased to 23 billion per day, which is showing higher investor confidence. Followed by this. This is Pakistan's international perspective that Imran Khan has set up by going to different countries and has mixed the diplomatic strategy with the economic relationships as well. If you look at the different visits in Saudi Arabia to UAE, to Saudi Arabia, China, UAE, Malaysia, Turkey, Qatar. So if you look at the data till December 2019, we will come to know that Pakistan foreign diplomatic policy is mainly reliant as converted into geoeconomics to have a positive image of Pakistan in the international media. Now the second thing that we will be talking about is Pakistan's ease of doing business ranking. It has jumped to 108 and it has increased by 28 points. If we look at the different categories that we have to look for in order to improve this ranking furthermore, ease of doing business,
we will come to know that we have to look on this factor, that is registering property, because our ranking is pretty low, that is 151. And then the other is enforcing contracts, 156, and the third is paying taxes. So we have to make paying taxes easier. So these, if we improve in these three categories, so our ranking would automatically improve. Most important is the enforcing contract thing. Okay, now provision of infrastructure. First of all, what we have to do, we have to establish export processing zones and specialize export zones as well. Then Pakistan is the third largest milk producing nation in the world. Yet we import powdered milk. So we have to convert our raw materials, our primary products into manufactured products if we want to gain an upper advantage. Similarly for mangoes as well. That India exports almost double the amount of mango pulp extract. While compared to Pakistan, although Pakistan is producing quite high quality mangoes and they are exporting it, but not the pulp. So pulp is a expensive item, so that we will export, we will have a better revenue. Similarly, so the better export infrastructure should be provided to the companies. Now, most important is establishment of export diversification mechanism. Right? Pakistan has crossed $1 billion in IT and ITS exports, and there's a lot of potential. If you look at the idea that has been presented in the form of what is the IT related exports कहलाती हैं, ITES. ITS जो है, अच्छा. ITS है IT related services. Okay. सही है, तो वो डिजिटल पाकिस्तान का जो फोकस है वो कहते हैं $3 बिलियन तक पहुंचा दिया जाए ना, तो ये. So the main thing that here Imran Khan has said that it should reach to $3 billion and more than 100,000 graduates. Then changes have been made to paper rules in order to increase ITES and IT exports. Then first time ever domestically produced microwave ovens are exported by Pakistan, and the first domestic mobile manufacturing policy has been drafted. Then major news, Samsung has announced that it will establish a center in Pakistan for mobile manufacturing, and Amazon has also announced to establish their center over here. This is followed with broadening and revamping of tax base. Pakistan has only actually Amazon ने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, Amazon ने स्टार्ट भी कर दी है सर्विसेज अपनी. कर दी है स्टार्ट. बिल्कुल, उन्होंने अपनी एक डिफरेंट नेम के साथ Amazon वेब सर्विसेज के नाम से रजिस्टर करके कंपनी दे हैव स्टार्टेड, मतलब विद फुल इंटेंट के प्रॉपर्ली लॉन्च करेंगे बाद में. अच्छा, कब से कर रहे यार? इसका मैं आपको कंफर्म बताता हूँ. Amazon वेब सर्विसेज, इन्होंने रजिस्टर तो कर लिया है. ये अपने डाटा सेंटर और सर्वर्स फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह यहाँ पे लॉन्च कब करते हैं इसकी स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है, बट ये जरूर आया था कि दे हैव स्टार्टेड. सही है, ठीक है. उन्होंने हत्ता के जॉब्स भी पोस्ट कर दी हैं. अच्छा, मतलब उनकी कोई कंपनी अप्लाई करना चाहे तो. हाँ, करंटली उसके लिए आया है हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन पाकिस्तान, बट और जॉब्स भी आएंगी. बड़ी बात है भाई. Okay, when we talk about broadening and revamping of tax base, so we are saying that Pakistan is one of those countries which has less than 2 million income tax filers according to last year's data. So what we have to do, we have to broaden the tax base and revamp the tax system. So first of all, educating people about the importance and means to file taxes, right? It is made compulsory for the government employees. Then moreover, making e-filing more interactive and easy to work with. And it should be done without the help of any lawyer. So this should be done, and NADRA and SBR should form liaison
in order to increase the number of tax filers. So whoever is on the NADRA card, it should be automatically registered with SBR. That is not the case, but this should happen. Then with revamping of tax system, what they have done recently is that they have removed the withholding taxes from education related tobacco, steel meters and architects and different equipments. And they have introduced the concept of zero tax filing. It should be introduced. What is zero tax filing? It is that from a teenage, even if a person has to pay zero tax, like for a teenager, then even that person should be paying a zero tax as an activity, so that आपकी बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जीरो जो टैक्स है, जीरो टैक्स वो पे करे। बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं उनको पहले से फाइलिंग करवा दी जाए, जैसे ही वो होते हैं कोई 12-13 साल के, तो जीरो टैक्स से वो फाइल करते रहेंगे, उनको आदत हो जाएगी, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। So the developed interest is there in the teenagers. Okay. Now this is effective use of monetary policy. The State Bank has used the monetary policy to a great advantage, and it has decreased the policy rate from 13.25% to 6%. Now what happens when the interest rates are lower? Currency will depreciate. When it depreciates, imports become expensive, so less imports, exports become okay. So when we are talking about effective use of monetary policy, the State Bank has effectively used the monetary policy in COVID-19. The policy rate has been decreased. I think meeting drop हो गई थी, मैं फिर से rejoin किया मैंने। हाँ यहीं से है ना। आप last slide पे नहीं थे, इससे पिछली slide पे नहीं थे आप? देखते हैं। ये ना जीरो टैक्स फाइलिंग है। मैंने कहा बच्चों को आदत डाल दी जाए जीरो टैक्स फाइलिंग की ना, जैसे क्लासरूम हिसाब से टीनेजर्स को डाल दिया जाए कि भाई आप जीरो टैक्स फाइल करो, तो वो टैक्स नेट में शुरू से आ जाएंगे। ये चीज है, ये कुछ ममालिक में बिल्कुल सही बात है। यूएई कॉलेज लेवल पे अगर इसके क्वेश्चंस वगैरह, अगर इसके क्वेश्चंस ऐड कर दें ये लोग पेपर्स वगैरह में, इंटर वगैरह में पढ़ाया जाए तो तो भी दे कैन स्टार्ट। नहीं, ये यूएई वगैरह में मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज में ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया जीरो टैक्स फाइलिंग, तो वो उनको एज अ शुरू में ही वो जैसे एक शनाख्ती कार्ड बनना जरूरी हो गया, ऐसे जीरो टैक्स फाइलिंग उनको एक्टिविटी हो। ठीक है। नाउ कमिंग टू use of effective monetary policy. State Bank SBP has used the monetary policy to great advantage in the COVID-19. They have decreased the policy rate from 13.25% to 6.7%, decreasing 625 basis points. Now, this is the best. This is what is reflected in the returns that July 2020 was the best market July in the last 17 years. Why it happened? Because lower interest rates leads to currency depreciation, leads to imports expensive. That means that imports are less, exports are more. And investments in stock market rise because people take out money from fixed income investment and invest in the stock market, leading to economic growth. After this, the conclusion is basically that Pakistan has made strong structural reforms and changes which were expected from them. They were missing from some power related areas, which they have made good contracts with the IPPs related to that, and all stakeholders have to resolve the economic issue and the economic aspects, and collaboration should be done in order to have success. CAD, cash positivity, that is the current account deficit, was positive. It was into surplus in May 2020. And the fiscal deficit has also reduced. It means that positive returns are now expected and the policies have been implemented. This is the bibliograph. सही, ये लिख लिया कुछ इकोनॉमी के ऊपर से? नहीं, मैं तो सुन रहा था, लिखा तो नहीं मैंने इसमें। हमने बड़ी स्लाइड बनाई हुई है, मैं आपके फैक्ट्स देख रहा था, सुन रहा था। हाँ, कोशिश तो की है यार कि अच्छी बने। इसमें ना ये जो सारा रिसेंट डेटा है ना, ये बजट का जो था, बजट का भी आया हुआ, ये देखो बजट है, तो ये आपका बजट था उस वक्त, सारा डेटा इस कुछ बजट से लिया है, कुछ कहीं से लिया है। ये फिगर तो लिख लो ना अपने पास, तो ये लिखो जरा।
सानिया लिखो इसको तो। मैं लिख रहा हूँ। हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना बुरा है यार, बहुत ही बुरा हाल है। यही तो। मतलब पाकिस्तान अगर कंपनी होती तो इतने बुरे तरीके से इतना गंदा गियरिंग रेशियो होता। और ये तो 90% उसने एक्सपेक्ट किया है फिच ने कि ये 90 पे चला जाएगा। अच्छा नूर भाई, पॉलिसी रेट 8% क्यों आ रही है? पॉलिसी रेट तो अभी 7% नहीं है? हाँ ये तो फिर या वो वो था ना, 2020 ये जून का है। 2020 का पूरा उन्होंने, अच्छा 2020 का पूरे 12 साल का 12 महीने का करके उन्होंने शायद एवरेज करके दिखाया है, या जून का है सिर्फ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो चीज है ना, ई जो लिखा हुआ है, हाँ ये है एक्सपेक्टेड। ई, जब डेटा रिलीज होता है ना, एक्सपेक्टेड है ये। सही। जब डेटा आपका रिलीज होता है ना इकोनॉमिक रिव्यू और सर्वे के अंदर, तो फाइनल फिगर जो है वो बाद में आती है। उससे पहले आप एक फिगर बना लेते हो, वो आप एक्सपेक्टेड बताते हो, क्योंकि वो 9-10 महीने तक का डेटा आपके पास एक्यूमुलेट हुआ हुआ होता है, जो 30 जून को ठीक है, आपके पास बजट। तो ये जब भी तुम ई देखो ना, इसका मतलब दिस इज नॉट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है। ठीक है, ये है असल मसला। तो ये देखो ना, उस वक्त जो थी इन्फ्लेशन रेट वो ये थी, ये सब फिगर्स का जो डेटा है ये एवरेज पे है। अब अभी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि जाहिर है तुम देखो ना, पॉलिसी रेट उस वक्त 13.25%। यानी आपकी उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी, इट वॉज कितनी थी उस वक्त? इन्फ्लेशन जो थी आपकी वो थी 15% के करीब थी। तो इतनी आपके पास इन्फ्लेशन चल रही है। अब आपकी जो इन्फ्लेशन है वो जाहिर कम हो गई, 7-8% पे आ गई, 9% पे आ गई। ये ये किसकी वजह से कम हुई कि आपने ये इंटरेस्ट रेट कम किया तो उसकी वजह से कम हुई है? नहीं, ये इन्फ्लेशन इसलिए कम हुई, एक तो कोविड आ गया, तो जाहिर है कोविड के तो बाद मतलब आपकी डिमांड श्रिंक हो गई? डिमांड श्रिंक हो गई। जब आपके एग्रीगेट डिमांड कम हुई, तो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर था वो भी हट गया। ठीक है। तो अच्छा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो हट गया, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या देखा कि भाई कि अब चूंकि इन्फ्लेशन रेट भी कम हो रहा है तो उसकी वजह से पॉलिसी रेट को कम किया? नहीं यार, वो तो सिंपल एक कहानी है, वो उसका मजाक भी बनाते हैं हम लोग तो उसमें। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इसका मजाक है क्या, मतलब कि वो ये कहते हैं जैसे एलियन भी अगर आ जाए ना, तो जो पहला इकदाम होगा जिंदगी के अंदर वो क्या होगा, पाकिस्तान मुल्क के अंदर, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, वो ये होता है कि आप इंटरेस्ट रेट कम कर दो। ये एक जनरल फिनोमिना ठीक है। है। पूरी दुनिया ने ये एस्पेक्ट लगाया कि उन्होंने जो था इंटरेस्ट रेट कम कर दी। तो ये जनरल दुनिया फिनोमिना। ने पूरी किया था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी 8% या 7% पे जो रखा है, इतना क्यों रखा था? ये इसलिए कि हॉट मनी आता रहे या इन्वेस्टमेंट कायम रहे पाकिस्तान में, या क्या रीजंस थे? यार ये तो उसके साथ होता है, ये आपके इन्फ्लेशन के साथ लिंक होती है चीज ना। ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो कम किया है, ये कम तो फिर आर्टिफिशियली तौर पे करना पड़ा है इन कोविड आ गया। हाँ, क्योंकि उससे पहले तो वो दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज चल रही थी और आपने देखी था कि वो 13.25 था। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या मतलब मसला बन गया कि लोग डिफॉल्ट करने जा रहे थे? क्या जिन लोगों ने लोन्स लिए हुए थे क्या वो पे ऑफ नहीं कर रहे थे? रन ऑफ का चांस था? क्या हो गया था नहीं नहीं, ऐसा कुछ। इसकी वजह से? ये काफी जनरल। पाकिस्तानी कंपनीज जिन्होंने बोरिंग की होगी उनको 6.25% तक का रिलीफ उनकी पेमेंट्स में मिला है ना, लोन में। तो वो ये रिलीफ देने की गवर्नमेंट, रिलीफ तो वो काफी तरीकों से दिया गया है, वो तुम्हारी बात सही है। लेकिन सबसे पहले इंटरेस्ट रेट इसलिए लो किया जाता है क्योंकि देखो ना, उस वक्त कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, इन्वेस्टर कहता है कि यार मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सही है, तो उसको डिलीट कैसे? बिल्कुल ठीक है। सारे बिजनेस ठप हो रहे हैं, सप्लाई चेन रुकी पड़ी, उन्होंने कहा यार ये इंटरेस्ट रेट कम कर दो भाई, तुम लोन ले के काम चला लो। तो फिर वो उसको एक इंसेंटिव ये इस तरीके से दिया जाता है। तो ये सबसे पहली बात है।
ठीक है। बट आपको क्या लग रहा है कि ये जैसे कोविड चला जाता है, सिचुएशन कोविड तो हर दुनिया में पता नहीं कब जाता है, बट हमारे यहाँ जैसे सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो गई है, तो ये इन्हीं फिजिकल पॉलिसी के साथ कैरी ऑन करते रहेंगे या इवेंचुअली बढ़ाना शुरू कर देंगे फिर से? आप बेसिकली ये करेंगे कि देखो साइकिल चलता है ना जिंदगी के अंदर। साइकिल ये था कि हाई के ऊपर चला गया, आप अगर साइकिल को रिपीट करते हो हर 5 साल के अंदर तकरीबन एक साइकिल आता है आपके पास। तो अब तो साइकिल चल पड़ा है कि आपके पास जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रही है दुनिया, सब कर रही है, फिक्स इनकम से लोग पैसा निकाल लें, तो द साइकिल हैज स्टार्टेड अगेन। तो अब जो साइकिल था अब रिवर्सल का साइकिल है। सही है। तो अब मतलब गवर्नमेंट ने जो सख्त पॉलिसी शुरू के साल के 2 महीने में 2 साल करनी थी वो उन्होंने कर ली है, अब वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं किसी तरह से कि जितनी एक्सपेंशन कर सकते हैं करें। हाँ, अब जो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो है यही रहेगा स्टैटिक, कम से कम 6 महीने तक, जो मेरा अपना अंदाजा है 6 महीने या 4 से 6 महीने। उसके बाद जाके आपके चेंजेस आएंगी चीजों के अंदर। तो ये एस्पेक्ट है सबसे पहला। अच्छा नूर भाई, फिर आपने एक फिगर और लिखा था कि रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई आए हैं, $2.786 बिलियन हाँ, इन द जुलाई मंथ ऑफ के जुलाई। जुलाई के अंदर है। अच्छा, इसका मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा था उसमें एक तो रीजन ये लिखा हुआ था कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो तो ट्रैवलिंग वगैरह बंद हुई है, तो जो हवाला हुंडी चैनल्स जो थे उसके थ्रू बहुत सारी पेमेंट्स हुआ करती थी, तो वो बेसिकली अब बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आई हैं। उसके अलावा भी दूसरा, काफी देखते हैं। एक तो वो कह रहे थे कि हज कैंसिल हुआ है, उसका पैसा आया। अच्छा तो हज कैंसिल हुआ तो बाहर वालों को पैसा पाकिस्तान में कैसे आया ये? तो वो बाहर वाले ही क्या तो स्पॉन्सर करते होंगे अपनी फैमिली वगैरह को, वो बात है ना। अच्छा, उन्होंने जो स्पॉन्सर करके जो वो लगाना था बाहर जाने के लिए, वो बस उन्होंने ये पाकिस्तान तो में एक वापसी अपनी भेजा है। तरफ से उन्होंने एक रीजनिंग की हुई, जो मुझे लगता है बेसिकली जाहिर है। अब आप सिंपल बात देखो कि एक सीधी सी बात है, यहाँ पे जो है आपका रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है। तो आपको वैसे भी जो पहले जो खर्चे होते थे उससे ज्यादा ही आपको अभी डबल देना पड़ेगा, तो फिर वो उतना पूरा हो रहा होगा ना भाई। एक तो कोरोना भी इतना जोर शोर से आया, लोगों को जाहिर है सब बड़े से बड़ा बंदा था वो भी, यार उसको मदद की जरूरत पड़ गई कि यार तुम मेरी मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं लेकिन नूर भाई, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक हुई है यूई वगैरह में, फिर भी लोगों ने पास से पैसा भेजा है, तो आई डोंट नो अभी ये नंबर्स में नहीं आया सबसे ज्यादा ये आया किस जगह से है, कि यूई से आया है या गल्फ से आया है, या वैसे तो पूरी दुनिया ही ग्लोबली इकोनॉमिक में मतलब बहुत बुरे तरीके से हिट हुई हुई है अभी। और ऐसा नहीं कि जॉब सिर्फ यूएई वगैरह में या गल्फ में गई हैं जॉब्स, खैर कनाडा और यूरोप में भी बहुत लोगों की गई हैं, बट स्टिल इस नंबर में पैसा आना, देयर इज समथिंग। या ये भी हो सकता है कि बहुत से लोगों की चूंकि जॉब्स गई हैं तो वो जो सेविंग्स उनकी वहां पे होंगी वो सब यहाँ पे लेके आए हैं। हाँ सही कह रहे हो। लेकिन लेट्स सी, देखें अगस्त के क्या नंबर्स आते हैं। अगस्त ही वैसे मोर और लेस हो ही गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स कब रिलीज होते हैं? यार 30th के बाद से होते हैं ये तो, आ जाता है डेटा उसी दिन। अच्छा, चले लेट्स सी क्या आता है अगस्त में, क्या नंबर्स आते हैं। अच्छा ठीक है, ये कर लिया। नूर भाई एक चीज और पूछनी थी, इससे हाँ। क्या पाकिस्तान वगैरह को, मतलब पाकिस्तान जो लोन्स वगैरह लेता है आईएमएफ वगैरह बाकी सबसे, इनसे इस पे इंटरेस्ट रेट तय होता है या क्या लाइबोर के साथ कनेक्ट होता है, किस तरह से होता है? नहीं या नहीं, अगर मतलब हो भी, तय होता है इन लोगों का ना। मतलब गवर्नमेंट्स के आपस में होते हैं, वो ये नहीं होता, वो लाइबोर को फॉलो नहीं करते, कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट यही बोरिंग इतनी जहां पे तक मुझे रहेगी। पता है कि वो फिक्स्ड ही होता है, क्योंकि जाहिर है पेमेंट्स बहुत लंबे अरसे के लिए चलती हैं, तो आई थिंक सो इट्स फिक्स्ड मोर और लेस। ये देख लो, ये भी लिख लो यार, ये तो अच्छा, 3.5 ये और भी वो इम्पोर्टेंट।
हो गया। एक मिनट, तो इसमें दो बातें ना, एक मार्केट किसी में मीट नहीं हुआ और बाकी सब नेगेटिव है सिवाय एग्रीकल्चर के, दो ही बातें। यही एग्रीकल्चर के आई डोंट नो कि नंबर्स इंक्रीज हुए हैं या वो जो उनकी प्राइसिंग वगैरह इंक्रीज हुई थी तो उससे उन्हें बेनिफिट आया है। यार वो बारिशें काफी हुई है ना, उससे फायदा हुआ। नहीं मतलब नूर भाई वो उनकी प्राइसेस जो बढ़ी हैं वही उतनी प्रोड्यूस, वो जो पहले बेच रहे थे तो उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही थी, प्रोबेबली उतनी ही प्रोड्यूस में है क्योंकि प्राइसेस बढ़ी हैं तो रेवेन्यू इधर ज्यादा बना पहले है। तो ये हो गया था ना कि आपको वीट भी इंपोर्ट करना पड़ गया था, बारिशें नहीं हुई थी तो बाहर से मंगवाना पड़ गया था, ये कहानी कह रहा हूँ। हाँ वैसे अभी भी सुना है कि चीनी इंपोर्ट थोड़ी बहुत की है, लेट्स सी ये चीनी वाला मसला कब हल होता है सही से, क्योंकि अभी तकरीबन 100 रुपए भी चल रही है अगर मार्केट में 1 किलो लेने जाए तो। हाँ आज ये है न्यूज़, बड़ी बात है। लिख लिया ये? जी मैंने लिख लिया है। ये देख लो, ये फिगर लिख लो कि डेफिसिट जो था वो इतना था, अब इतना रह गया। करंट अकाउंट डेफिसिट फर्स्ट 9 मंथ ऑफ फिस्कल ईयर 2.8 बिलियन 1% ऑफ जीडीपी। लेकिन ये जो 19 में भी 10.3 का नंबर है काफी इंप्रूव करके लाए थे, अगर 2018 का आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। हाँ हो गया। जी नूर भाई। ये आ गया पब्लिक डेट टू जीडीपी। ये बताते रहते हैं कि आपको डोमेस्टिक करेंसी डेट कितना है, ये कितना है। इसको छोड़ो, आगे चलते हैं हम। ये मॉनेटरी पॉलिसी देख लो। अब ये देखो, जो बेसिक दो बातें थी, एक 15 का देखो और एक 18 का देखो। और अब देखो, अगर अगर 7 से स्टार्ट करें इंटरेस्ट रेट 9.5 पे थे और इन्फ्लेशन 7.8 पे थी, फिर आती है गवर्नमेंट भुट्टो की, इन्फ्लेशन चली जाती है 12 पे और इंटरेस्ट रेट्स 10.8 पे रहते हैं, अच्छा इसमें दो इन्फ्लेशन फिर बात। चली जाती है एक तो देखो, 17% पे भी जब भी गई वो। जब भी नई गवर्नमेंट आती है ना, तो शुरू के 1-2 साल में तुम देखोगे कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बड़ा हाई है। क्योंकि जाहिर है उसमें दो बातें हो रही थी, एक तो 5 साल पूरे होते हैं तो उसके अंदर वो जो उनका आईएमएफ का प्रोग्राम होता है ना, उसकी भी कोई पेमेंट का बड़ा हो रहा होता है कि वो एंड हो रहा होता है, या आपको रिन्यू करना पड़ता है आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो पीरियड आ रहा होता है, तो शुरू के 1-2 साल में ना ये आप हमेशा चेक करोगे कि जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसके अंदर तुम देखोगे कि इन्फ्लेशन राइज होगी। अब ये देखो ना 13, ये लोग कब आए, FY13 में आए ना। हाँ गंजी उसमें है। अब ये देखो, तो ये जैसे 5 साल में देखो साइकिल रिपीट ही होता है मोड ऑफ लेस। अब ये 8 के अंदर कितनी थी, 12 थी इन्फ्लेशन। अब ये 13 में नहीं है, तो ये 12 के अंदर देख लो ये 11 थी। इन्फ्लेशन देखो कितनी बढ़ गई, 17 में, 9 में देखो 17 पे आ गई थी। अच्छा ये मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन इसमें वो नंबर्स नहीं आ रहे ना कि करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह कहाँ पहुंचा दिया था, क्या कुछ हो गया था जिसके लिए ये सब करना पड़ा है। हाँ ये तो नहीं है, बस इन्फ्लेशन और इसका दो का कंपेरिजन। तो देखो ना कि यहाँ पे आप देखो कि 18 के अंदर इन्फ्लेशन वो किस पे छोड़ के गए, जो वो लोग बात कहते हैं। अब ये देखो इन्फ्लेशन सीपीआई कितनी कम है, 2.9% 16 में।
और इंटरेस्ट 5.8%। लेकिन इंडस्ट्री की ग्रोथ तब भी नहीं हो रही थी। इंडस्ट्री की ग्रोथ तो नहीं हो रही। एक्सपोर्ट्स के नंबर अगर आप देखें, एक्सपोर्ट्स के नंबर जो ग्रेजुअली ग्रो करते गए हैं, अगर इतनी ही खराब सिचुएशन होती तो अभी ग्रो क्यों कर रहे हैं? यही तो बात है। अब ये देखो ना, ये इन्होंने जब भी वो कहते हैं ना, हमारा अपना क्लेम कहते हैं कि हमने तो बड़ा स्टेबल रखा, तो अब ये देखो ना, स्टेबिलिटी 5.8, 6.5, ये तो अब, और इन्फ्लेशन भी देख लो तो 2.9% पे आएगी। अब इन्फ्लेशन से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2007 से या 13 साल के अंदर सबसे कम इन्फ्लेशन इन्हीं के पीरियड में रही है। ऐसा ही है। 2.9, 4.8, 4.7, बाकी हर दफा इन्फ्लेशन ज्यादा है। ऐसा ही है। ये नेगेटिव जीडीपी का क्या साइंस है ये? एनी चांस के रिवर्सल होगा इस साल? राय रिवर्स होगा, लेकिन जो बात है असल वो ये था कि 2018 में जो जीडीपी था वो आपका था 5.8%। सही है, आपने 19 के अंदर क्या किया, आपके जो जीडीपी गिरा, वो गिरा 3.3% के ऊपर आप लेके आ गए 19 के अंदर, जो कि बहुत ही कम था। मतलब इतना, एक आप समझो नियरली, आप कितना कहते हो, अगर 5.8 से 3.3 लगाओ तो इट्स नियरली अ डिक्रीज ऑफ 70%। फिर अब आप लेके आ गए उसको नेगेटिव में। अब आप उस 5.8 को -0.4 पे लेके आ गए हो, तो जो एक्सपेक्टेड था वो ये था, जो टारगेट सेट किया था इन्होंने वो भी कम किया था। जहां तक देखा जाए, ये मैं अभी तुम्हें दिखाया, जो टारगेट था, ये जो इन्होंने बजटेड बनाया था टारगेट 2.4% का बनाया था, कि 20 के अंदर वैसे भी कम ही होती थी। यानी पिछले साल आपकी 19 में 3.3 हुई, आप कह रहे हो कि उससे भी कम होगी। ये आप सोचो। जीडीपी ग्रोथ बजट के हिसाब से 0.4, लेकिन नूर भाई इस दफा वाले बजट में वो भी तो, कोरोना भी तो नई अनोखी चीज आई है। नहीं, कोरोना से पहले, ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ ये 2.4 जो नंबर है, ये क्या था आपने, बजट क्या होता है कि पिछले पिछले साल बैठ के मैं बताता हूँ कि अगले साल कितना मेरी ग्रोथ होगी। हाँ, अगर टारगेट पे पहुंच जाऊंगा तो ये मेरी ग्रोथ रेट रहेगी। सही है। तो ये वो बजटेड फिगर देखो ना, 2.4 दे रहा है, 3.3 पिछले साल हुई, हमने बजटेड ज्यादा बनानी चाहिए ना, या कम से कम 3 तो रखते। हमने अपना बजट रखा। नहीं, लेकिन बजट में जो 2.4 नजर आ रही थी, इसका मतलब है उन्हें नजर आ रहा था कि अगले साल हमने ग्रोथ नहीं करनी है, हमने जीडीपी में गिरना ही गिरना है। हाँ, गिरना है मे बी ड्यू तो। टू सम पोटेंशियल करेक्शंस के जो उन्हें नजर आ रहा था कि भाई हमने करना है, तो हमने मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह की पेमेंट्स बहुत सारी नहीं होनी थी, वो सब चीजें नहीं होनी थी। मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग कि हमने, हाँ, ग्रोथ रेट अगले साल तो कम होगा हमारा। तो वो ग्रोथ रेट कम होगा, तो कम हुआ भी तो नेगेटिव ही पहुंच गया, जो कि तुम्हें मैंने दिखाया कि 1952 के बाद से पहली दफा ऐसा हुआ। यानी 60-70 सालों में पहली दफा नेगेटिव ग्रोथ हुई है। चलो ये मान लेते हैं कि कोरोना का इम्पैक्ट है, लेकिन क्या इतना इम्पैक्ट है कोरोना का, या हमारी अपनी भी आप बातें इसमें कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी हो गई आपकी। लेकिन नूर भाई, वो भी तो आपने बड़ा पॉजिटिव आज बताया है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बजाय हम पहले दफा सरप्लस का नाम सुनना है फिर से भाई। यार, बहुत ही अरसे बाद कि भाई कोरोना ये को करंट हम अकाउंट लोग सरप्लस भी इतना, हो जाए। कोरोना को इतना कह रहे हैं, कोरोना का फंड तो वो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, कोरोना का तो पैसे ही बच गया, लोगों को भी तो गया ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं लोगों को पैसे की। कौन सा, जो आप स्टिमुलेशन फंड कह रहे थे? अभी तो वो अनाउंस किया है ना कि कोरोना का पैसा बच के पता नहीं किधर डैम में लगाने। उसी की बात कह रहे हैं ना, जो स्टिमुलेशन फंड वगैरह दिया था 1.5 ट्रिलियन, लेकिन वो उन्होंने यूज नहीं किया। वो तो दो जगह ना, पहले तो वो इंटरेस्ट पेमेंट में इस्तेमाल हो गया कोरोना का हाँ, पैसा। लेकिन नूर भाई, कोरोना का पैसा क्या किया था इन्होंने? बजट के
भाई इंटरेस्ट पेमेंट सही है, लगा है। वो तो डैम का पैसा। अच्छा अभी आया ना यार, ये अभी भी कोरोना का जो पैसा है उसके ऊपर कोई पॉलिसी पता नहीं निकालना, उसे टैक्स रिफंड देने की बात हो रही है शायद। हाँ, सप्लीमेंट्री ग्रांट करके उन्होंने उसमें से पैसा निकाल के मुख्तलिफ हेड्स में खर्च किया है। पर ये नूर भाई, ये जो 1.5 ट्रिलियन पैसा आया, ये आया कहाँ से था कोरोना का? ये कोई इन्हें स्पेशल मिला था या इन्होंने इसी बजट में से हेड आउट किया था कि भाई कि हम कोरोना के लिए साइड पे रख रहे हैं? भाई ये तो आईएमएफ ने 1.4 बिलियन डॉलर दिया था मार्च के एंड में। वो तो उसी का दिया है ना, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इन्होंने पहले ली हुई थी। तो भाई कोरोना की ऐसे मांगा था पैसा इन्होंने, फिर कोरोना के लिए मतलब एक्सटेंडेड तो फैसिलिटी ली हुई है लेकिन उसमें पेमेंट नहीं दे रहे थे, फिर कोरोना की वजह से उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो खत्म हो रहे हैं, हमें पैसे दे दो, तो पैसे दिए। फिर कोरोना के नाम पे मांगा है ना आपने। मांगा तो नहीं है, मुझे ये याद पड़ रहा है उन्होंने बोला था किस्त पे नहीं कह रहे कि भाई हम नहीं पे कर सकते अभी, हमारा कोरोना वगैरह चल रहा है, तो किस्त डेफर कर रहे हैं, रीस्केड्यूल करा दें। हाँ रीपेमेंट रीस्केड्यूल की हुई है, सही कह रहे हो। और जो उसके पैसे हैं वो आप सही कह रहे हैं कि वो इन्हें अभी नजर आ रहे हैं कि अच्छा ये तो बच गए, इनका क्या करें। अच्छा फिस्कल पॉलिसी हो गई। अब ये देखो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ना, अब ये जो फिगर आ रही है 18 में कह रहे 12.9 था, सॉरी टैक्स टू जीडीपी नहीं है, हाँ टैक्स टू जीडीपी। अब ये 18 ये में, तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। 17 में देख रहे हो, 17 में ज्यादा था, 18 में ज्यादा था, 19 में कम हो गया। ये बड़ा मसला था हमारा। उसका रीजन था, नहीं उसका रीजन था, आप याद करें 2018 में क्या किया था मिफ्ता इस्माइल वगैरह ने, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स थे ना, इनकम टैक्स